Assalamu alaikum dear students, this is your maths lecture and I'm here again with the second part of introduction to chapter square and square roots. So let's start. Starting with how many zeros must be there at the end of a number to be a perfect square. As we have seen in our last lecture, I told you numbers with last digits 1, 4, 6, 9 and 0 are perfect squares or square numbers, isn't it? So according to that, the number written on the board, as you can see, that's 1000. So 1000 must be a perfect square number, isn't it? But 1000 is not a perfect square number. Now the question is why? This number is ending with 0. So this number must be a perfect square number, as we have read in the last session. Now let's see why 1000 is not a perfect square number, isn't it? Okay. So I'll give you example to make you understand why 1000 is not a perfect square number. So I will give you more examples. Like you have in the last session, we have seen that 100 is a perfect square number, isn't it? Also 10,000 is a perfect square number. Okay, 1 lakh, 1, 2, 3, 4, 5. This number is 1 lakh, and 1 lakh is again not a perfect square number. So here you can see this is not a perfect square number. This number is a perfect square number. This number is a perfect square number, and this number is not a perfect square number. तो इस सब से आपने क्या देखा? पहला perfect square number नहीं था, 1000 perfect square number नहीं है, 100 है, 10,000 है, 1 lakh नहीं है. तो इसमें आप एक कॉमन चीज नोट कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इसमें पहला नंबर जो है इसमें 3 zeros है, isn't it? 1, 2, 3, isn't it? दूसरे नंबर में कितने zeros है? 2. तीसरे में 1, 2, 3, 4. पांचवे में 1, 2, 3, 4, 5, isn't it? तो इसमें क्या हो रहा है? पहला जो है इसमें जो zeros है वो हम कह सकते पेयर्स में नहीं है, जोड़े में नहीं है, isn't it? 2 का जोड़ा बन रहा है बेटा, एक अकेला रह रहा है, isn't it? इसमें 2 का जोड़ा है बराबर, इसमें ये दो एक पेयर बनाएंगे और ये दो एक पेयर बनाएंगे, isn't it? इसमें ये दो एक पेयर बनाएंगे, ये दो एक पेयर, एक अकेला रह रहा है, ठीक है? ओके, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसमें जो zeros है, ठीक है, इसमें ऑड नंबर ऑफ zeros है. ओके, इसमें इवन नंबर्स ऑफ zeros है, इसमें अगेन इवन नंबर्स ऑफ zeros है, इसमें ऑड नंबर ऑफ zeros है. तो इस सब से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं. Okay, so with these examples we can conclude that number of zeros in first case are odd, isn't it? Numbers in second case is even, numbers in third case is again even, and numbers of zeros in fourth case is odd. Okay, so we can conclude that number having even number of zeros at the end or number of zeros in pairs are square numbers, isn't it? और हम लोग ये भी conclude कर सकते हैं that the numbers having odd number of zeros or the number of zeros not in pairs at the end are non-perfect squares. Okay, or we can say are not square numbers. मतलब कि इसमें ये वाला नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसमें जो जीरोस है एंड जो एंड पे जीरोस है वो पेयर्स में नहीं है. इसमें पेयर्स में है तो इसलिए स्क्वायर नंबर है, इसमें पेयर्स में है तो ये स्क्वायर नंबर है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस पेयर्स में नहीं है तो इसीलिए स्क्वायर नंबर नहीं है. ओके, सो इस सब से हम लोग ने देखा कि स्क्वायर नंबर वही है जिसके एंड पे इवन नंबर ऑफ जीरोस है, या तो हम बोल सकते हैं वो नंबर स्क्वायर नंबर है जिसके एंड पे जीरो जो है वो कैसे होंगे? इन पेयर्स. ओके, so starting with our second subtopic, that is triangular numbers. As you can see on the board, I have wrote the definition, that is numbers
whose dot patterns can be arranged as triangles are called as triangular numbers. Now let's understand the definition well. For that purpose, I will give you an example. Like, first of all, I have number 1. Okay, तो as per the definition मैंने कहा वो numbers जिनको हम लोग arrange कर सकते हैं किसकी सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल. तो नंबर 1 जो है इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो एक ही डॉट आएगा क्योंकि 1 नंबर है. 2 को नाउ 3 को कैसे कर सकती हूँ 3 डॉट्स से, ठीक है, लेकिन ये 3 डॉट्स तो ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं, तो फिर मुझे इन 3 डॉट्स को, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है ताकि ये ट्रायंगल बने. तो मैं इस पर्पस के लिए क्या करूंगी, मैं 2 डॉट्स को यहाँ पे रख रही हूँ और 1 डॉट को ऊपर लेके आ रही हूँ. ओके, तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो ये ट्रायंगल बन रहा है, इजंट इट. सो 3 इज अगेन अ ट्रायंगुलर नंबर. फाइन. उसके बाद 6. ओके, तो 6 कितने डॉट्स का बनेगा, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो 6 नंबर में 6 डॉट्स होंगे. अब मुझे इन डॉट्स को अरेंज करना है ताकि ये क्या बन जाए, ट्रायंगल. सो लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6, इजंट इट. ये देखिए आप, मैंने इन 6 डॉट्स को अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6, और जब मैं इनको ज्वाइन करूंगी तो एक ट्रायंगल बन रहा है. सो 6 इज अगेन अ ट्रायंगुलर नंबर. ऐसे ही हम 10 की एग्जांपल देख लेते हैं. तो 10 में 10 डॉट्स होंगे. सो 1 2 3 4, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 3 4 5 6 7. ओके, नाउ 8 9 10. ओके, तो मैंने 10 वाला बना दिया. अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. सो 10 इज अगेन अ ट्रायंगुलर नंबर. होप इन एग्जाम्पल से आपने ट्रायंगुलर नंबर को समझा होगा. तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके डॉट पैटर्न्स को हम लोग जब अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, मतलब वो नंबर्स जिनके जो डॉट पैटर्न्स होते हैं उनको हम लोग एज अ ट्रायंगल अरेंज कर सकते हैं. अब मैं एग्जाम्पल दूंगी 2 की. 2 जो है, 2 को हम लोग अरेंज नहीं कर सकते, इसमें 2 डॉट्स है, क्या ट्रायंगल बन रहा है, नो, इजंट इट. तो 2 जो है दैट इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर. ओके, अगेन मैं और एक एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे, 1 2 3 4. क्या 4 के केस में ट्रायंगल बन रहा है, नो. सो 4 इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर, इजंट इट. तो ट्रायंगुलर नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो इन सबको क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलर नंबर्स. नाउ उसके बाद हमारा क्या है, अगर हम लोग 2 ट्रायंगुलर नंबर्स को आपस में 2 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी. लाइक 1 इज अ ट्रायंगुलर नंबर, 3 इज अ ट्रायंगुलर नंबर, 6 इज अ ट्रायंगुलर नंबर, 10 is a triangular number, 15 is a triangular number. कुछ triangular numbers की मैंने examples ले ली. ओके, तो 1 जो है, 1 के बाद कौन सा है triangular number, 3, उसके बाद 6, ठीक है. आप बोलोगे 2 क्यों नहीं लिखा है, 2 is not a triangular number, isn't it. उसके बाद 3 है, 4 नहीं है ट्रायंगुलर नंबर, 5 नहीं है ट्रायंगुलर नंबर, उसके बाद 6 है. तो इसके बाद मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला अगर हम 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करें, ठीक है, अगर हम 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करें तो वहां से हमें कौन सा नंबर मिलेगा, वहां से हम लोगों को स्क्वायर नंबर मिलेगा. फाइन. तो इसका मतलब है इसको और इसको ऐड करने से मुझे स्क्वायर नंबर मिलेगा, ठीक है, इसको और इसको ऐड करने से मुझे स्क्वायर नंबर मिलेगा, ठीक है. ऐसे नहीं करना है, इसको और इसको ऐड करना है. 1 और 6 आपस में कंसेक्यूटिव नहीं है. कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे को फॉलो करें. तो यहाँ पे ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद 3 है और 3 के बाद 6 है, तो बीच में 3 आ रहा है, तो 1 और 6 कंसेक्यूटिव नहीं हुए, इजंट इट. तो इसका मतलब है जो एक दूसरे के बाद हो उनका. तो 1 और 3 जो है, ठीक है, ये आपस में कंसेक्यूटिव है. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर हम 2 ट्रायंगुलर नंबर्स ले तो 1 भी ट्रायंगुलर नंबर है और
3 भी है और इनका सम कर दे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो स्क्वायर नंबर होगा। सो लेट अस सी, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 जो है उसको रिप्रेजेंट करूंगी डॉट पैटर्न में, जो मैंने आपको अभी सिखाया। सो इट इज 1 2 एंड 3। तो 3 जो था वो क्या था, वो ट्रायंगुलर नंबर था, मैंने अभी आपको कहा। तो और मैंने क्या कहा, इसके साथ क्या ऐड कर दो, 1। तो मैंने इसके साथ 1 ऐड कर दिया, तो आप देख रहे हैं स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब है 4 जो है दैट्स अ स्क्वायर नंबर। और हम लोग ने देखा है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, उसके चारों साइड इक्वल होते हैं और हर एक स्क्वायर जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, मतलब कि जब हम एक स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वहां पे 2 ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम 2 ट्रायंगल्स को आपस में मिलाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ठीक है। सो दिस स्क्वायर इज कंपोज्ड ऑफ 2 ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे भी 2 ट्रायंगुलर नंबर्स को मिलाने से हम लोगों को क्या मिल रहा है, स्क्वायर नंबर। ओके, हम इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि 2 ट्रायंगल्स को मिलाने से स्क्वायर कैसे बनेगा। लाइक मेरे पास 10 है और मेरे पास 6 है, ठीक है। तो मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ ताकि मेरा स्क्वायर बन जाए। लाइक मैं इसको इस तरीके से अरेंज करूँगी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, इजंट इट। ओके, तो इसका मतलब है 10 + 6 इज इक्वल टू 16 और इन दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है, इन दोनों को मिलाने से स्क्वायर बन रहा है। ओके, और ये स्क्वायर नंबर ही है और 16 जो है वो स्क्वायर नंबर है, फाइन। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे 3 है, ओके, और मेरे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज कर देती हूँ ताकि ये भी क्या मेरा बन जाए, ये भी मेरा स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी स्क्वायर बन रहा है, ओके। थोड़ा बहुत गड़बड़ है काटने में, बाकी आप घर में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। सो इट इज़ 3 + 1, ये भी स्क्वायर बन रहा है, 2 और 2 डब्बे, तो स्क्वायर ही बन रहा है, ओके। तो ये भी मेरा एक स्क्वायर नंबर बन गया और ये भी मेरा एक स्क्वायर नंबर बन गया। और मैंने कैसे बनाई स्क्वायर नंबर्स, मैंने 2 ट्रायंगुलर नंबर्स जो है उनको आपस में मिलाया। लेकिन क्या है, मुझे कंसेक्यूटिव ये ना ट्रायंगुलर नंबर्स को मिलाना। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। मतलब अगर हम 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स ले, उसके बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स, मतलब कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं। लाइक वी हैव एग्जाम्पल, like we have 16, okay, and 25। और हमें पता है 16 जो है दैट इज अ स्क्वायर नंबर एंड 25 इज ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 2 स्क्वायर नंबर्स ले लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 16, हमें पता है 16 एक स्क्वायर नंबर है और 25 भी एक स्क्वायर नंबर है। तो उसके बाद तो मुझे अब क्या करना है, मुझे देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं। सो मैं यहाँ ऐसे कर लेती हूँ, 16 के बाद 17 आता है, 18 आता है, 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 और उसके बाद 25। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 16 जो था वो स्क्वायर नंबर था, 25 जो है वो भी स्क्वायर नंबर है। और हमें क्या देखना था कि 16 और 25 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने नंबर्स आ रहे हैं, लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इजंट इट, कितने नंबर्स आ गए, 8 नंबर्स आ गए, फाइन। तो और ये सारे नंबर्स जो है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है ना, ये मैं स्क्वायर नंबर्स है, ये तो नंबर्स है लेकिन ये स्क्वायर या स्क्वायर नंबर्स नहीं है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, इजंट इट। तो अब जो ये प्रोसेस है इसमें हमें क्या करना पड़े, इसके बीच में जो नंबर्स है वो लिखने पड़े। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग देख सकते हैं कि जो ये नंबर्स है, 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, और हमें उसके लिए सारा कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा। सो लेट्स सी वो क्या है। हम लोग एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज
मैं दो नंबर्स ले रही हूँ, एक n का स्क्वायर और दूसरा n+1 का स्क्वायर। दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स मैंने लिए हैं और मैं इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेती हूँ। ओके, सो लेट्स सी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। ओके, सो n स्क्वायर, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होती है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा हुआ था, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, और a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, इजंट इट? तो हम लोग यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस केस में a जो है दैट इज n, तो n का स्क्वायर। ओके, b जो है दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर। ओके, और उसके बाद ट्वाइस a, इसमें n है और ये 1 है। ओके, ये मैं इरेज कर लेती हूँ, ठीक है, फाइन। उसके बाद दैट इज 1। ओके, मैं अच्छे से लिख लेती हूँ। ओके, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस इनको 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, 2n इंटू 1। ओके, 2 इंटू n इंटू 1, वो तो 2n ही हो जाएगा। अलग अलग से कर लेते हैं, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है एज पर द फॉर्मूला। तो यहाँ पे n1 ज़ा n, n2 ज़ा है ना, n2 ज़ा 2n। ओके, सो 2n आ जाएगा, फाइन। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये n जो है इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, ये प्लस में है। और दूसरा n जो है वो माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है? माइनस। तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या बच जाएगा? दिस 1 प्लस 2n। इसको हम लोग 1 प्लस 2n या 2n प्लस 1, स्क्वायर नंबर्स जो है उनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 2n प्लस 1 नंबर्स का, फाइन। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो n है, ठीक है, इसको हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सपोज जो हमने n लिया था, लेट दैट बी 4। ओके, कितना ले लिया हमने? 4। तो उस हिसाब से अगर हम लोग इस वाले में ये सब्स्टिट्यूट करें ये वैल्यू, तो कितना आएगा? दैट इज 2 इंटू 4 प्लस 1, isn't it? So 2 4 are 8, 8 plus 1 is equal to 9। तो इसका मतलब है अगर n जो है, अगर पहला नंबर मैंने 4 ले लिया था, तो दूसरा नंबर कितना होगा? n प्लस 1। तो n प्लस 1 वाला नंबर कितना होगा? n प्लस 1 वाला नंबर जो होगा दैट विल बी 4 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में इस फॉर्मूला के हिसाब से कितने नंबर्स फिर एग्जिस्ट करते हैं? 9। लेकिन अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एग्जाम्पल में, वो तो 8 ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस सब से हम लोग कंक्लूड करेंगे जो हमारा ये फॉर्मूला है दैट इज 2n प्लस 1, ठीक है। तो इससे जो हमें आंसर आएगा उसमें हमें एक लेस कर देना है, और उसमें से एक जब हम लेस करेंगे, जो हमारा आंसर होगा उससे हम पता लगाएंगे कि दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने स्क्वायर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। Isn't it? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं रिपीट कर लेती हूँ। ओके, तो इससे जब हमने आंसर निकाला दैट इज 2n प्लस 1 नंबर, तो इसका मतलब है दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो जनरल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है दैट इज 2n प्लस 1। उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आपको सिंप्लीफाई करवाने के लिए, मतलब कि आपकी बुक जो है उसमें एग्जाम्पल से नहीं समझाया गया, तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया। तो मैंने सपोज किया कि n जो है उसका वैल्यू मैंने 4 ले लिया, तो इस हिसाब से जो दूसरा जो मैंने नंबर लिया था, दूसरा स्क्वायर नंबर, तो वो क्या होना चाहिए? वो 5 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि n अगर 4 है तो n प्लस 1 5 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसी की एग्जांपल दी थी, और मैंने दिखाया था कि 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने कितने नंबर्स आते हैं, कितने नंबर्स आ रहे थे? वो आ रहे थे 8 नंबर्स। लेकिन इस फॉर्मूला से जो हमने देखा कि कितने डिफरेंस आ रहा है? 9। तो बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है दो स्क्वायर्स के बीच में दैट इज 9, उसको हम लोग को क्या कर देना है? एक कम कर देना है। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला जो है इसमें से एक हमें लेस कर देना है। ओके, तो जब हम इस जनरल फॉर्मूला में
तो ये जनरल फॉर्मूला थी। इसमें से हमें क्या करना, एक कम कर देना है, फाइन, एक कम करेंगे तो +1 -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2n। तो कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में, 2n, इजंट इट। तो इसका मतलब है दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने अब नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, 2n। तो इस फॉर्मूला से अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं कोई भी दो स्क्वायर नंबर जो हमें गिवन होंगे उनके बीच में कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। होप आपको ये टॉपिक इज हेडिंग ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, तो आप सब लोगों को पता है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। सो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को ऑड नंबर्स को एड अप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑड नंबर है दैट इज 1, ओके। उसके बाद 2 ऑड नंबर नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 3, तो 3 हमारा ऑड नंबर है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑड नंबर्स का ऐड करना है, क्योंकि हमने सब टॉपिक की जो हेडिंग लिखी है दैट इज एडिंग ऑड नंबर्स, तो हम लोग उसका ऐड कर लेते हैं। सो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, ओके। और आपको पता है 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, दैट इज 2 का स्क्वायर, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, उसके बाद 1 + 3 प्लस, और नेक्स्ट ऑड नंबर जो है उसको भी ऐड कर लेते हैं, क्या है 1 + 3 + 3, 4 है ऑड नंबर, नो, उसके बाद 5 है, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 8 + 1 इज इक्वल टू 9, ओके। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। उसके बाद 1 + 3 + 5 प्लस, और नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 7, ओके। 9 + 7 इज इक्वल टू 16, ओके। सो 16 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, दैट इज 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज इक्वल टू 25, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इसमें एडअप किया ऑड नंबर्स को, और मैंने देखा कि जब मैं ऑड नंबर्स को ऐड कर रही हूँ तो पहले में मैंने 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया, दूसरे में 3 को, चौथे में 4 को, फिर 5 को। तो मैंने क्या देखा, एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिल रहा है, मुझे स्क्वायर नंबर्स मिले, पहले 2 का स्क्वायर मिला, फिर 3 का स्क्वायर मिला, फिर 4 का स्क्वायर मिला, फिर 5 का स्क्वायर मिला, ठीक है। तो इस सब से मैंने क्या देखा कि जो सम था ऑड नंबर्स का, जो पहले 2 ऑड नंबर्स का सम था वो किसका स्क्वायर बन रहा था, 2 का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स का किसका बन रहा था, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो इस सब को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है जो भी स्क्वायर नंबर्स है वो बेसिकली क्या होते हैं, जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स का सम होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे के बाद जो ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम होता है। लाइक आपने देखा 1 + 3, ठीक है, 1 और 3 जो आपस में ऑड नंबर्स है उन लोगों ने हमें रिजल्ट दे दिया 4, और 4 जो था वो 2 का स्क्वायर था, इजंट इट। तो इसका मतलब है ये स्क्वायर नंबर जो है, सॉरी ये स्क्वायर नंबर जो है ये 2 ऑड नंबर से बना हुआ था। ऐसे ही ये भी स्क्वायर नंबर है, ये किससे बना हुआ था, 3 ऑड नंबर से, ये भी 3 ऑड नंबर से, ओके। तो इसका मतलब है अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंने 2 ऑड नंबर्स लिए, उसके बाद में 2 ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर यहाँ पे डाल देती, तो जो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलता वो स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो इस सब से हम लोग कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि जो नंबर है वो स्क्वायर नंबर तभी होगा, ठीक है, जब वो किसका सम होगा, जब वो सम होगा सक्सेसिव ऑड नंबर्स का, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसका मतलब है 1 जो है दैट इज अ स्क्वायर नंबर, उसके बाद ऐड अप करना है हमें और एक ऑड नंबर दैट इज, उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा दैट इज 3, सो 1 + 3 इज 4, अगेन इट इज स्क्वायर नंबर। फिर उसके बाद और एक नेक्स्ट ऐड सक्सेसिव ऐड करना है, उसके बाद वाला ऐड करना है, तो इसका मतलब है 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9, तो वो भी है। उसके बाद नेक्स्ट, तो हमने इस सबसे यही कॉन्क्लूड किया कि बेसिकली जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो 2 ऑड नंबर्स से बने हुए होते हैं, 2 ऑड नंबर्स के सम से बने हुए होते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा पहले केस में 2 का था, तीसरे केस में 3 का था। तो शॉर्ट में हमने ये कॉन्क्लूड किया कि
जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो सक्सेसिव ऑड नंबर्स के सम से बनते हैं. Isn't it? Hope you. Now our next topic is sum of consecutive natural numbers. मतलब कि जब हम नेचुरल नंबर्स जो एक दूसरे के बाद आते होंगे उनका हम लोग सम कर लेंगे, मतलब कि उनको हम लोग एडअप कर लेंगे, तो हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को स्क्वायर नंबर मिलेगा. लाइक मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. लाइक वी हैव 4, दैट्स द नेचुरल नंबर, और उसके बाद जो नंबर आ रहा है दैट इज 5. सो 4 जो है दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, जो 5 है दैट इज ऑल्सो नेचुरल नंबर. और मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा हमें नेचुरल नंबर्स जो कंसेक्यूटिव मतलब जो एक दूसरे के बाद आते होंगे उनका हमें सम कर लेना. तो इनका सम जो है दैट इज इक्वल टू 9, और 9 जो है दैट इज अ स्क्वायर नंबर. तो इसका मतलब है जब हम लोगों ने दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम कर लिया तो हम लोगों को जो आंसर है वो क्या हमें आया, स्क्वायर नंबर आया. ओके, सो इट मीन्स 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है. ऐसे हम कोई और दो कंसेक्यूटिव ले लेते हैं. लाइक वी हैव 12 एंड 30. ओके, 12 और 13 जो है जब हम उसको ऐड कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 25. एंड 25 इज अगेन अ स्क्वायर नंबर, इजंट इट. और ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है. ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का आपस में ऐड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को स्क्वायर नंबर मिलता है. ठीक है, नाउ अगर सिचुएशन डिफरेंट हो, लाइक अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास गिवन हो ये आपका स्क्वायर नंबर है, लाइक आपके पास 9 जो है दैट इज गिवन, वो आपका स्क्वायर नंबर है. ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये 9 जो है ये किन दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम से बना हुआ है. ठीक है, तो 9 जो है 9 किस से बना हुआ है ये तो हमें पता है, यहाँ पे हमने लिख दिया 4 + 5. ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज n² - 1 का स्क्वायर, n² + 1 + 2. सॉरी, मैं रिपीट कर लेती हूँ, मैंने बोलने में गलती की. दैट इज n² - 1 का n² - 1 डिवाइडेड बाई 2, n² + 1 डिवाइडेड बाई 2. तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें गिवन स्क्वायर नंबर है वो किन दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम से बना हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब है इससे हम लोग एक कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर फाइंड करेंगे और इससे हम लोग दूसरा नेचुरल नंबर फाइंड करेंगे. सो लेट्स सी हम इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, सो सबसे पहले इसमें हम लोग n का जो वैल्यू है वो क्या देंगे, 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है. ठीक है, सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें n जो है दैट इज 3, इजंट इट. सो इट इज 3 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2. यही है ना, खाली n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था. सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 - 1 डिवाइडेड बाय 2. 9 - 1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इरेज कर लेती हूँ. ओके, 9 - 1 इज इक्वल टू 8, इजंट इट. 8 डिवाइडेड बाय 2 वापस आएगा. सो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4. तो हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया, और एक नेचुरल नंबर क्या है हमारा, 4. नाउ दूसरा आप देख लेते हैं, दैट इज ये, इस फॉर्मूला से हमें दूसरा नेचुरल नंबर फाइंड करना है. सो n का वैल्यू क्या था हमारा, 3. सो 3 का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय 2. सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2. सो 9 + 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 9 + 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2. सो 2 1 आर 2, 2 5 आर 10. तो हमारा दूसरा नेचुरल नंबर क्या था, 5, इजंट इट. तो आपने देखा इन फॉर्मूला से हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें गिवन स्क्वायर नंबर है, ठीक है, वो किन दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम से बनता है. ठीक है, तो इस सब से मैंने आपको ये दिखा लिया, एंड आई होप आप लोग कर भी सकते हैं इसके बाद वाले. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा स्क्वायर नंबर दे देती हूँ, आप होमवर्क समझ के कर लीजिएगा. आप कीजिएगा नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज आप 7 का स्क्वायर कर लीजिएगा. ठीक है, तो 7 का स्क्वायर इज योर होमवर्क, इजंट इट.